So the first question is Newton's law of viscosity is the relation between option A shear stress and rate of shear strain, shear stress and viscosity, rate of shear strain and viscosity, pressure, velocity and temperature. So क्वेश्चन पूछा गया है आरपीएससी जेई 2020 में. So Newton's law of viscosity जो रिलेशन होता है that is tau shear stress directly proportional to static shear strain, that is tau is directly proportional to du upon dy. So shear stress जो रिलेशन होगा shear stress and rate of shear strain, option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी इज ऑप्शन है ml -1 t -1 ml t -2 ml स्क्वायर t -1 ml t -1 RPSC J 2020. सो डायनेमिक विस्कोसिटी की डायमेंशन पूछ रहा है. तो डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. सो अगर डायमेंशन फाइंड करें तो न्यूटन की हो गई ml -2, सेकेंड की हो गई t और मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर. सो इसको सॉल्व करेंगे तो ml -1 t -1. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है continuity equation is based on the principle of conservation of option है energy, mass, momentum both A and B. क्वेश्चन है RPSC J 2020 में. सो continuity equation is based on the principle of conservation of mass. सो ऑप्शन B is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है discharge Q over a triangular notch or wear is given by that is CD into under root 2g tan theta by 2 h की पावर 5 by 2. नेक्स्ट ऑप्शन है 1 by 2 CD under root 2g है tan theta h की पावर 5 by 2. 8 upon 15 CD into under root 2g into tan theta by 2 h की पावर 5 by 2. 2 by 3 CD under root 2g tan theta by 2 h की पावर 3 by 2. RPSC J 2020. सो डिस्चार्ज ओवर अ ट्रायंगुलर नॉच के लिए जो फॉर्मूला होता है that is Q इक्वल टू होता है 8 by 15 CD under root 2g into tan theta by 2 into h की पावर 5 by 2. So option C is correct. Next question है what is the total pressure on a plane surface inclined at an angle theta with the horizontal. option है PA. next option है PA tan theta, PA sin theta, PA cos theta. so क्वेश्चन पूछा गया RPSC J 2020 में. so total pressure जो है that is क्या होगा यहाँ पे PA, that is option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर मेजर्ड अबव द एब्सोल्यूट प्रेशर इज टर्म्स एज. ऑप्शन है गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. आरपीएससी J 2020. सो एब्सोल्यूट प्रेशर से जो द प्रेशर अबव द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर जो होगा वो क्या होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सरफेस टेंशन in a soap bubble of 40 mm diameter when inside pressure is 2.5 Newton per meter square above this atmospheric pressure. So option is 0.0064 Newton per meter, 0.860 Newton per meter, 1.265 Newton per meter, 0.0125 Newton per meter. RPSC J 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है. सो सोप बबल्स की बात हो रही है. डायमीटर कितना है 40 mm डायमीटर गिवन है एंड इनसाइड प्रेशर P गिवन है that is 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गिवन है. सो सरफेस टेंशन फाइंड करना है डेट इज सिग्मा फाइंड करना है. सो P इक्वल टू 4 बबल्स की होता है डेट इज 8 सिग्मा अपॉन डी. सो 2.5 ये हो गया 8 इंटू सिग्मा अपॉन डी डेट इज 0.04. सॉल्व करेंगे तो डी सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 0.0125 न्यूटन पर मीटर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विपोटेंशियल लाइंस एंड स्ट्रीम्स लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट. ऑप्शन है ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, 45 डिग्री, एक्यूट एंगल. सो आरपीएससी J 2020 में. सो इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम्स लाइन आर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे से और वो करते हैं 90 डिग्री पे. दैट मींस राइट एंगल. ऑप्शन बी इज करेक्ट. So next question is pressure inside a water drop is given by the relation. Option P is equal to 4 sigma upon D, P is equal to 3 sigma upon D, P is equal to 8 sigma upon D, P is equal to 16 sigma upon D. So question पूछा गया RPSC J 2020 में. So droplet की बात हो रही है तो P is equal to होता है 4 sigma upon D. So option A is correct. So next question है discharge through fully submerged orifices. Option है CD into B into H2 minus H1 into 2GH and options given है B and C and D. Option given है H1 जो हाइट है कैपिटल H, डिफरेंस ऑफ लिक्विड लेवल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द ओरिफिस है. H1 क्या है हाइट ऑफ द लिक्विड
above the top edge of the orifice of the upstream side and S2 का है height of the liquid above the bottom edge of the orifice on the upstream side. So यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा that is ऑप्शन ए करेक्ट होगा. अब बात आती है कि ये कैसे फॉर्मूला ड्राइव हुआ. सो अगर सपोज अगर हम लोग फिगर ड्रॉ करें, सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपका ऑरिफिस है वो पूरा का पूरा क्या है, वो सबमर्ज है. सो यहाँ पे अगर हम लोग ऑरिफिस ड्रॉ करें, सो अगर हम लोग ऑरिफिस ड्रॉ करें तो यहाँ पे h1 हाइट गिवन है, दैट इज ऑरिफिस से जो टॉप एज है उससे जो हाइट गिवन है वो h1 हाइट गिवन है, एंड बॉटम से जो हाइट गिवन है वो h2 हाइट गिवन है, और h जो है वो डिफरेंस ऑफ हाइट है, ए कैपिटल H. सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि हाइट अगर निकाला जाए, हाइट ऑफ वाटर above the center of orifice on upstream side. सो ये क्या होगा, ये हाइट कितनी गिवन है, h1 गिवन है, और ये हाइट हमको सेंटर से ये हाइट नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट. सो ये हाइट कितनी होगी, टोटल में से माइनस कर दे h2 माइनस h1 अपॉन 2. सॉल्व करेंगे हाइट आएगी h1 प्लस h2 अपॉन 2. इस तरह हाइट ऑफ द वाटर जो है अबव द सेंटर ऑफ ऑरिफिस ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड. सो डाउन स्ट्रीम साइड पे जो हाइट आएगी वो आएगी h1 प्लस h2, अप स्ट्रीम की हाइट पता है माइनस कर दिया, माइनस कैपिटल H. डाउन स्ट्रीम पे हमको हाइट मिल गई, तो हमको दोनों हाइट मिल गई है. सो अगर और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, सो P1 अपॉन रो जी, ये कितनी हाइट है, हमको निकली h1 प्लस h2 अपॉन 2, एंड P2 अपॉन रो जी जो हमको हमारा निकला है वो क्या है, h1 प्लस h2 अपॉन 2 माइनस h. सो अगर हम लोग बर्नौली इक्वेशन लगाएं तो अगर ये सेम लेवल पे है तो z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू 0. सो बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, दैट इज P1 अपॉन रो जी प्लस ही हम करते हैं V1 स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2g. सो यहाँ पे हम लोग सेक्शन 1 पे क्या है, वेलोसिटी हम निगलेक्ट कर लेते हैं. सो यहाँ पे ये क्या हो गया, दैट इज P1 h1 प्लस h2 अपॉन 2 प्लस 0 इज इक्वल टू P2 अपॉन रो जी की वैल्यू क्या है, h1 प्लस h2 अपॉन 2 माइनस h माइनस h माइनस h प्लस v स्क्वायर अपॉन 2g. तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद ये बच्चा है दैट इज कैपिटल H इक्वल टू हो जाएगा v2 स्क्वायर अपॉन 2g. तो दैट इज v2 आपका आ गया अंडर रूट 2gh. सो एरिया ऑफ ऑरिफिस कितना हो जाएगा, एरिया अगर निकाल लेते हैं ऑरिफिस का b इंटू h2 माइनस h1, क्योंकि हमको विड्थ गिवन है b. सो डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, सो डिस्चार्ज इक्वल टू हो जाएगा दैट इज cd इंटू b इंटू h2 माइनस h1 इंटू एंड वेलोसिटी कितनी आई, दैट इज 2gh. सो इसी तरह ऑप्शन ए जो हमारा क्या है वो करेक्ट ऑप्शन है. थैंक यू.